Hello friends, welcome to Redix. In this session we will discuss SSC speed test number 332, its mathematic portion. Now question number 51. O is the center of the circle passing through the point A, B and C. If angle BOA is 30 degree, angle BCO is 40, then angle AOC. एक सर्कल बना लेते हैं. In this O is the center and there are 3 points A, B and C. This is A, this is B and this is C. Given that B, this is O, BAO, this angle is 30 degree and BCO, this angle is 40 degree. Now if this is 40, देखो ये रेडियस है, this would also 40. उसी तरह से ये रेडियस है, this is 30, this would be 30. अब अगर ये 30 है 30 तो ये कितना होगा? वी हैव टू कैलकुलेट AOC. तो देखो 70 है, इसका डबल होगा 140. आंसर इज बी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो 3 + 1 है, 3 स्क्वायर + 1 है, 3 to the power 4 + 1 है, 3 to the power 8 + 1 है, 3 to the power 16, 32. आप एक चीज नोटिस करो, पावर डबल हो रही है. यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ 8, देन 16, देन 32. अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस, देखो इसको 3 - 1 से बोथ साइड डिवाइड करो. 3 + 1, 3 स्क्वायर + 1, 3 to the power 4 + 1, 3 to the power 8 + 1, 3 to the power 16 और 3 to the power 32 + 1. ओके. नाउ डिवाइड दिस बाई, हमने देखो 3 - 1 से मल्टीप्लाई किया, देन विल डिवाइड दिस बाई 3 - 1. नाउ a - b and a + b, this would be, this total term would be 3 square - 1. Now a - b or a + b, again this is, these two will be 3 to the power 4 - 1. Now you can see pattern that every minus with plus will be 3 पावर डबल हो जाएगी. दिस इज 3 8 - 1, फिर इन दोनों का हो जाएगा 3 to the power, और ये सब हटता जाएगा. तो फाइनली क्या बचेगा? 1 + 3 की पावर. इसका रूल ये होता है आखिरी में जो होता है उसकी डबल पावर, मीन 3 to the power 64 - 1/2. नाउ 2 LCM, दिस इज 3 to the power 64 - 1/2 एंड दिस इज 3 to the power 64 + 1/2. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल से. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अब इस क्वेश्चन में अगर हम थीटा को 0 एज्यूम कर लेते हैं, देखो बहुत तरीके हो सकते हैं. द इजीएस्ट वन, एज्यूम थीटा इज 0. नाउ cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 अपॉन 1060 इंटू 1030. नाउ cos 45 1/√2 स्क्वायर 1/2, अगला भी स्क्वायर 1/2 अपॉन √3 इंटू 1/√3. √3 कैंसिल हो गया, दिस इज 1/1. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 men and 2 women can do a piece of work in 4 days, and while 2 men and 3 women can do the same work in 5 days, 3 men plus 2 women can do a work in 4 days, whereas 2 men plus 3 women can do the work in 5 days. इसको मल्टीप्लाई करो. 12 men plus 8 women is equal 10 men plus 15 women. अब आप मैन को इधर लिया, वुमेन को इधर शिफ्ट करो. 2 men is equal 7 women. अब it is given that 100 rupees is given to a woman for her contribution towards work per day. Means woman को per day 100 मिल रहा है. तो यहाँ से क्या होगा? man upon woman is equal 7/2. This means man अगर 7 यूनिट पर डे कर रहा है तो woman कितना करेगी? 2 यूनिट. और it is also given that woman gets ₹100. Now 2 यूनिट इज इक्वल 100, क्योंकि देखो उसके 2 काम के बराबर उसको 100 मिल रहा है. सो 1 यूनिट इज इक्वल कितना? 50 रुपीज. सो 7 यूनिट मैन का पूछा है. दिस इज 350. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Each of the 2 circle of equal radii with center at A and B pass through the center of one another. Now circle are equal and their center are AB, and each of the circle is passing through center of other circle. If they cut at C and D, then angle. Okay. तो एक डायग्राम बना लेते हैं. एक this is the circle, this is another circle, and they passes through center of each. Means this is A, this is B, and they cut at C and D. So if we join this, this and this, because it is equal circle, तो ये इक्वल, ये सब इक्वल होगा. तो दिस एंगल वुड बी 60, दिस वुड बी 60. इक्वल ट्राइंगल होगा. उसी तरह से नीचे भी 60 होगा. एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल DBC, दिस एंगल विच इज 120. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट. Sonu borrowed some money
some amount of money from Vijay for 2 years and returned it with compound interest. He returned 1050 more than the amount he had borrowed had he paid the amount with the simple interest at the same rate. He would have paid, अगर वो compound interest की देता है तो 1050 extra देता है, मतलब this is the interest. And had he paid the amount with simple interest at the same rate, he would have paid rupees 1000 more than the amount he had borrowed. Find the total amount he would have had to return had he borrowed rupees 1000 more at half the rate with simple interest. First of all, देखो पहली कंडीशन में this is compound interest, this is simple interest. So there is one important formula, C upon S is equal 200 plus R upon 200. From this formula we can calculate rate. Now compound interest 1050, simple interest 1000 is equal 200 plus R by 200. This is 21 by 20. Now this is 10 time 210 is equal 200 plus rate. So rate is 10%. And after this we have one more formula, principal is equal difference 100 by R whole square. ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए. नाउ प्रिंसिपल डिफरेंस इज 50 रुपीज. देखो 1050 इज इंटरेस्ट फॉर 2 year कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. सो देयर डिफरेंस इज 50 and 100 by 10 whole square. So this is 5000. Principal is 5000. We have to calculate, find the total amount he would have had to return had he borrowed rupees 1000 more. Initially he borrowed 5000, so new principal would be 6000 and with the rate half rate, so rate would be 5%. So interest would be P 6000 rate 5 times 2 upon 100. So this is 600 rupees. So total amount he has to return is 6000 plus 600 or 6600. Answer is C option. Okay, next question. The sum of 8 consecutive odd number is 656. The average of 4 consecutive even number is 87. What is the sum of the smallest odd number and the second largest even number? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Sum of 8 consecutive odd number. देखो जब हम बात करते हैं 8 consecutive odd number, let first term be x, then last term would be 8 है ना, तो 14 last term होगी, मतलब 8th term ये होगी. तो फॉर्मूला होता है n by 2 a plus l. This is equal to total terms है 8, first term x, last term 14, x plus 14, this is 656. Now this is 4 times 4 1 ja 6 ja and 4 ja. So 2x plus 14 is equal 164, 2x is equal 150, x is 75. Now smallest odd number, so smallest odd number is 75. Now average of 4 consecutive even number. Now 4 consecutive even number, अगर हम एक x लेते हैं, अगला अगर हम लेते हैं y, this is y plus 2, y plus 4 and y plus 6, and average is what, sum of first and last term by 2 means y plus 6 by 2. So this is 87. So 2y plus 6 is equal 174. So 2y is equal 168. Y is equal 84. Now y is 84. We have to calculate second largest. Second largest is this. So y plus 4 would be 88. Now we have to calculate this plus this. 75 plus 88. 163. Answer is C option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इस तरह क्वेश्चन का सिंपल तरीका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया हुआ है m, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वुड बी 1 अपॉन m. नाउ 10 कैंसिल, दिस इज 2 सेक थीटा इज इक्वल m प्लस 1 अपॉन m. दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m. सो सेक थीटा इज इक्वल m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m. And we have to calculate value of sine theta. Now sine is what? Perpendicular upon hypotenuse. Cos sec is what? Hypotenuse upon base. So अब आप क्या करोगे, यहां से एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे. दिस इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज. वैल्यू गिवन है, आप परपेंडिकुलर निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे. एक कॉमन सेंस देखते हैं. इन दिस केस हाइपोटेन्यूज इज m स्क्वायर प्लस 1. सो अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 आएगा. देखते हैं किस ऑप्शन में अपॉन में, केवल एक ऑप्शन ए. नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर, दिस इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The diameter of two circle are the side of square and diagonal of the square. The diameter of two circle, okay, are the side of square. अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, इसकी साइड अगर 2 मानते हैं तो ये 2√2 होगा. ये याद रखना, एक रूल होता है ना, जैसे अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, दिस इज ए, देन डायगोनल वुड बी a√2. हमने इसको 2 माना क्योंकि ये डायमीटर के बराबर है, तो इससे रेडियस आसानी से आ जाएगी. दिस रेडियस इज हाफ ऑफ 2 मीन्स 1 एंड दिस रेडियस इज 2√2.
the ratio of area of smaller circle and the larger. This is smaller circle, this is larger circle. Now area of 1 upon area of 2. Pi 1 square upon pi root 2 square. Right? Pi cancel. Answer is 1:2. Answer is C option. Okay, next question. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 7a plus 6b is equal 420. Where a and b are natural number, then what can be said about a? देखो यार, एक रूल होता है, even plus even is always even plus odd is always odd plus odd is always even, एंड यहां पर माइनस हो तो भी ये रूल चलता है. राइट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 420 इज इवन. 6b, एक और रूल, इवन इंटू इवन इज इवन, इवन इंटू ऑड इज इवन, एंड ऑड इंटू ऑड इज ऑड. सो अप्लाइंग फर्स्ट कॉन्सेप्ट, even plus even. So 6b is even. Now because the sum of two number is even and first one number is even, देखो even आने के दो तरीके होते हैं, either both even और both odd. तो एक even इसका मतलब this must be even, और इसके साथ जो 7 दिया वो odd है, it means a must be even. So answer is B option. Okay, next question. Lead pencil is in the shape of cylinder. The pencil is 21 centimeter long with radius 0.4 centimeter and its lead is of radius 0.1 centimeter. What is the volume of the wood? Okay, देखो, जब भी हम बात करते हैं पेंसिल की, तो लेड जो होती है वो भी डायमीटर, उसका भी रेडियस इस तरह से होगा, और ये हम मान सकते हैं अगर हमको वॉल्यूम ऑफ वुड कैलकुलेट करना, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. गिवन दैट रेडियस ऑफ दिस इज 0.4 and radius of this part, lead part, is 0.1. So volume of wood, it is volume of hollow cylinder, pi r1 square minus r2 square into h. Now given that h is 21, so 22 by 7 r1 0.4 square minus 0.1 square into h. और हमेशा ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप a प्लस भी और a माइनस भी जल्दी हो जाएगा. दिस इज 7 3 दिस इज 22 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 3. तो देखो दो चीजें, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो केवल एक आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन. अब आपको कुछ नहीं करना है, डिविजिबिलिटी रूल भी देखा जाता है. राइट? और यही देखा जाता है एग्जाम करने के लिए, आपको ये सब शॉर्टकट आने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0, देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस. देखो दो तरीके, इसको फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1 एंड -3. -1 एज्यूम कर लो, पुट करो, -1 अपॉन 1 माइनस 27 प्लस 27, कट कैंसिल हो गया, आंसर इज -1. एक तरीका तो ये हो गया. अगर ये फैक्टर ना बनते तो हम कैसे करते हैं? राइट? यहां तो आसानी से फैक्टर बन गए, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. लेकिन अगर ये फैक्टर ना बनते तो हम क्या करते? देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0. नाउ टेक 4x दिस साइड, दिस इज minus 4x divide by x plus 3 by x is equal -4. Now we have to calculate x cube upon x6 plus 27 x cube plus 27. Now divide this expression both side by x cube. So this is 1, this is x cube plus 27 plus 27 by x cube. अब देखो यहां पर x क्यूब, ये 27 3 का क्यूब होता है, दिस इज 3 by x, तो यहां पर ये वैल्यू मिल गई हमको. अब आप इसका क्यूब कर दो, x प्लस 3 by x का होल क्यूब. Now -4 का क्यूब -64. सी दिस इज x क्यूब प्लस 27 बाई एक्स क्यूब, ये हमें निकालना है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 बाई एक्स, और ब्रैकेट में x प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल -64. नाउ दिस x कैंसिल, दिस वी हैव टू कैलकुलेट x क्यूब प्लस 27 बाई एक्स क्यूब, दिस इज 9 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? -4. सो इंटू -4 इज इक्वल -64. राइट? सो x क्यूब प्लस 27 अपॉन x क्यूब माइनस 36 is equal -64. Now this comes this side, gives you -64 minus 36. कितना हो जाएगा? 64 minus 36 28. ठीक है ना? तो यहां पे 28 पुट कर दो, 1 अपॉन -28 प्लस 27, आंसर इज -1. सो दोनों मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करना, लेकिन अगर फैक्टर बन सकता है तो फैक्टर बना के सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका. Two trains A and B are 100 meter and 150 meter long and are moving at one another at 54 km per hour and 36 km per hour respectively. Arun is sitting on coach B1 of train A. Calculate time taken by Arun to completely cross train B. देखो जब भी एक पर्सन की बात करो जो कि किसी ट्रेन में बैठा है, तो उस केस में जिस ट्रेन में बैठा है उस ट्रेन की लेंथ काउंट नहीं होगी. ठीक है? सो टाइम टेकन वुड बी डिस्टेंस, तो ट्रेन की डिस्टेंस दोनों काउंट होंगे, 100 प्लस 150 अपॉन, क्योंकि यहां पर
सॉरी ये बी की लेंथ काउंट नहीं होगी क्योंकि हम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, ए की लेंथ काउंट नहीं होगी. सो दिस इज 150 बाई, ठीक है, जिस ट्रेन में बैठा है उसकी लेंथ काउंट नहीं होगी. देखो जैसे ये एक ट्रेन है जहां पर अरुण यहां बैठा हुआ है और इधर एक दूसरी ट्रेन है जिसपे बी ट्रेन है. तो जब अरुण की बात करें, अरुण क्रॉस करेगा ना इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि एक मूविंग पर्सन है जो इस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है. तो 150 अपॉन, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन द एट वन अनदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन. तो अब यहां पर इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी 54 प्लस 36. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा बिकॉज दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, सो वील मल्टीप्लाई दिस बाई 5/18. राइट, यहां पे डायरेक्ट कर दिया करो आप ऐसे 150 अपॉन दिस इज 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 5 5 जा 25, 6 सेकेंड. आंसर इज बी ऑप्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A man 6 feet tall cast a shadow 4 feet long at the same time when a flagpole cast a shadow 50 feet long. The height of the flagpole. देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब हम बात करते हैं. एक फ्लैगपोल है और एक पर्सन है. देखो जब सेम टाइम की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ऑलवेज इक्वल, मतलब ये भी एंगल अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा. सूरज की किरणें एक समय पे बराबर कोण बनाती है हर पोजीशन पर. अ मैन 6 feet टॉल कास्ट ए शैडो, इसकी इमेज बन रही है 4 feet. नाउ एक फ्लैग है, लेट इट्स हाइट इज एच, इसकी इमेज बन रही है 50. सो देखो हम क्या करेंगे, 10 अल्फा यहां से 6/4 और इधर से h/50. सो दिस इज h इज इक्वल 300/4 और 75 मीटर. सो हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज 75. बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप उससे सिमिलरिटी से भी कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट. In an examination, 35% student failed in maths and 42% student failed in English, while 14% failed in both the topic. एक डायग्राम बना लेते हैं, Venn diagram. Now, this circle shows failed student, maths and English. सबसे पहले जो कॉमन फेल्ड है 14% फेल्ड इन बोथ, तो आप सबसे पहले कॉमन वैल्यू लिखो. नाउ आफ्टर दैट 35% फेल्ड इन मैथ्स, कॉमन है 14 तो सब्ट्रैक्ट करो 21, एंड इंग्लिश में 42 सब्ट्रैक्ट करो 28. सो अगर मैं देखो 21 तो है जो खाली मैथ्स में, 14 जो दोनों में और 28 जो खाली इंग्लिश में, इनको अगर ऐड करता हूं तो दिस इज 63. नाउ 63% आर दोज हुज फेल इन ईदर मैथ्स और इंग्लिश और बोथ. और अगर मैं इसको 100 से माइनस करूंगा तो दिस इज 37. नाउ 37% आर दोज हुज पास्ड इन बोथ. अच्छा आगे बोला है 222 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ. इट मींस 37% इज इक्वल 222. अब आपको जो दिया उसके हिसाब से मैनेज करोगे. हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर टू राइट द एग्जामिनेशन मींस वी हैव टू कैलकुलेट 100%. सो 222 इंटू 100/37. दिस इज 6 times 600 स्टूडेंट ऑल टुगेदर गिव द एग्जामिनेशन. बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 66. Perimeter of regular hexagonal base of a right pyramid is 48 centimeter and its height is 20 centimeter. Find the volume. Now, volume of pyramid is 1/3 area of base into height, right? Now, base is hexagonal, right? And its side is, perimeter is 48, so side would be 6a is equal 48, so a would be 8. So this is 8, this is 8, 8, 8 and 8. So in this case, if we join these sides, these vertices, so this complete angle is 120, this would be 60 degree. Same way this would be 60. So this, ये जो पूरा ट्राइंगल बना ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ये साइड भी 8 हो गई, ये साइड. इसी तरह से पूरा ये 6 के 6 जो ट्राइंगल होंगे, दिस वुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ दिस वुड बी 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर. और आप ये याद भी रख सकते हो, एरिया ऑफ हेक्सागन, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इज इक्वल 3/2 √3a स्क्वायर. राइट, सो अब वैल्यू पुट करते हैं हाफ 1/3 एरिया ऑफ बेस 3/2 √3 8 स्क्वायर इंटू 20. सो दिस इज 3 कैंसिल 2 10, सो 640 √3. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. अ 2-digit नंबर ए बी 60% ऑफ एक्स. देखो यहां पर एक गलती कर सकते हो आप, दिस इज 10a प्लस बी. बहुत बेसिक रूल है, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसको 10a प्लस बी लिखेंगे. दिस इज 0.6 ऑफ एक्स एंड द 2-digit नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट 10b प्लस a, इट इज
60% मोर देन x मीन्स 1.6x। नाउ इनको आप सबट्रैक्ट करो और ऐड करो, तो सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, मैं बड़े छोटा घटा रहा हूं, दिस इज x और यहां पे कितना हो गया 9b माइनस 9a, सो b माइनस a वुड बी x बाई 9। अब हम इनको ऐड कर दें, सो 11a प्लस 11b इज इक्वल 2.2x, सो a प्लस b इज इक्वल 2.2x, या a प्लस b को हम लिख सकते हैं 1/5x। सो इस हिसाब से आप देख सकते हो x इज डिविजल बाई 5 एंड x इज डिविजल बाई 9, क्योंकि a और b होल नंबर होंगे, सो x ऐसा नंबर जो 5 से भी हो 9 से भी, केवल a ऑप्शन है। ओके ओके, a milkman purchases milk at ₹20 per liter, mixes 4 liter of water in it. By selling the resultant mixture at the rate of 20 per liter, he earns a profit of 40%. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ you mixes water into milk and you sell milk at cost, mixture at cost price of milk, इस केस में जो प्रॉफिट होता है, द प्रॉफिट इज ऑलवेज वाटर, हमेशा ध्यान रखना। एंड उस केस में मिल्क क्या होता है, मिल्क हमेशा 100 लेते हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 40%, तो 40 इज वाटर एंड मिल्क इज 100। नाउ द अमाउंट ऑफ मिक्सचर बी ही मेड विद हिम टू सेल विद, देखो 40 अगर वाटर है तो मिल्क है 100, तो यहां पर आपने कितना मिला है 4, सो 4 इक्वल 40, 4 यूनिट इक्वल 40, सो 100 यूनिट कितना होगा, अगर हम बात करते हैं 4 यूनिट बराबर 40, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड करो 10, इसका मतलब 10 लीटर मिल्क में 4 लीटर वाटर मिक्स किया गया है। द अमाउंट ऑफ मिक्सचर ही हैड विद हिम टू सेल वाज 10 लीटर मिल्क एंड 4 लीटर वाटर, 14 लीटर मिक्सचर इज देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज नोन टू बी 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ दिस सर्किल मस्ट बी। देखो अगर किसी सर्किल की हम बात करते हैं, कॉर्ड जो होती है इट इज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर जो होती है दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और आपको जो बोला हुआ है डायमीटर सर्किल की कॉर्ड जो है 10 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम वैल्यू डायमीटर जो कॉर्ड होगी वो हमेशा डायमीटर से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, एंड दिस इज 10, सो रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो ग्रेटर देन 5 लेकिन इक्वल वर्ड नहीं है, ये भी तो ए और बी दोनों होंगे, दोनों में कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब आंसर इज नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x 3 cos x। नाउ जब हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की 3 sin x प्लस 3 cos x, सी अगर हम x को 0 पुट करें तो हमारा आएगा sin 0 0 1 एंड cos 0 1 3 4, मैक्सिमम आ रहा है, देखो यहां पर वैल्यू कम हो रही है। अच्छा 2 कब पॉसिबल होगा, जब दोनों 0 हो जाएं, और दोनों एक साथ 0 हो नहीं सकते, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। नाउ 2 इंटू 3 टू द पावर -1/√2 एंड 3 टू द पावर -√2, अब हम देखते हैं क्या ये आंसर हो सकता है। देखो मिनिमम वैल्यू के केस में अगर हम x को 2 to 5 पुट कर दें तो sin 2 to 5 would be cos 2 to 5 and it is equal to -1/√2. Now put this value, this is 3 to the power -1/√2 plus 3 to the power -1/√2 and their sum is 2 into 3 to the power -1/√2. Answer is B option. Okay, next question. Now this is graph number of students in 1000 who opted for 3 different specialization during the given 5 year in a university: Hindi, English and mathematics. पहला क्वेश्चन, the total number of students who opted for mathematics in the year 2005 and 2008 together are approximately what percent of the total number of students who opted for all the 3 subjects in the same year? देखो 2005 और 2008 की बात करते हैं। मैथमेटिक्स 2005 मैथमेटिक्स इज 15 and 8 मैथमेटिक्स इज 30, so 45 is there. एंड अच्छा अब देखो 1000 को आप इसमें डील मत करो क्योंकि नीचे से कैंसिल हो जाएगा। एंड टोटल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट इन द सेम ईयर, तो देखो 15 35 50 एंड 55 प्लस इधर देखो 60 एंड 20 30 60 एंड 25 85 into 100, right? 4500 upon 140. now 0 कैंसिल कर दो, एक डेसिमल डालो,
तो दिस इज, और एक काम करते हैं 45 450 बाई 14 13 3 जा, अब बचा 30 14 2 जा, 32 पॉइंट समथिंग. वी हैव टू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. सो आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट, out of the total number of students who opted for the given 3 subjects in the year 2009, 38% of were girls. Now, how many boys opted for mathematics in the same year? देखो 38% गर्ल्स दिया हुआ है किसके लिए? सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी गर्ल्स थी. तो ये आंसर नन ऑफ दीज, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. What is the respective ratio between the number of students who opted for English in the year 2006? What is the respective ratio between English in 2006? English in 2006 is this 25 and 2008 30, तो 55 हो गया. अच्छा, इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता. 11 and 11 is to 5 is possible. And Hindi in the year 2005, Hindi this, and 2009 20 and 5 25. So this is 11 is to 5. Answer is A option. Okay, next question. What is the difference between average of the number of students who opted for English and the number of students who opted for maths in all the, okay. Now, what is the difference between average? अब देखो डिफरेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है. हम इसमें इंग्लिश, देखो इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश सब ज्यादा दिख रहा है आपको, मैथ्स कम है, तो आप मान लो इंग्लिश ज्यादा है मैथ्स से. और जब हम डिफरेंस की बात करते हैं एवरेज को, तो हम डायरेक्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 20. यहां पर डिफरेंस है माइनस में, देखो ये ज्यादा है ना, उल्टा हो रहा है यहां पर, तो यहां पर -20 हो गया, -10. इधर -5, यहां पर इक्वल है, और यहां पर +15. सो देखो ये हो जाएगा 20 डिफरेंस. 20 बाई कितने ईयर है? 5 4, और 1000 में तो 4000 इज द आंसर. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है, पूरा करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे ओवरऑल लेके चलो. What is the total number of students who opted for Hindi and who opted for math in the year 2006? What is the total number of students who opted for Hindi and who opted for math in the year this? तो देखो 2006 में हिंदी और मैथ्स 30, 7 में 15 and 10 25, एंड 9 में 40. इनको आप ऐड कर लो, 5 95. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके.